Good afternoon, friends. As given introduction by moderator, myself Rahil Vora. I am into the market from probably 10 more years, and I am using this software for approximately almost 10 years plus. Today, here I am there to share a knowledge on options, and just to share a knowledge, how do I do trading in options by using several parameters and tools from our own Spider software, which is a good analytical tool by Spider, which has been developed, and it has made our life very easy to trade on day-to-day basis. Like the the main topic over here is the options, and the picture suggests that since uh, market has not been doing good a long time, and we all know that post COVID situations have been locked down. uh, we all are tensed seeing the picture कि भाई अब कैसे करे क्या होगा. Everyday activity has been stopped. तो मार्केट में अब नया क्या करे कि कैसे कमाए, जो अपनी डेली रूटीन जो साइकिल है उसे चालू रखें हम. तो एक चीज है जहाँ पे we can look into it is an option, which is a game of probability. Trading is definitely not easy, and making money from trading is really a big task. But if we look trading from the particular system driven perspective, it is definitely a good tool and a consistent income generator for each and everyone. Today, we would like to see the following topics, which I am going to cover in my session. It looks like basically a kind of theory, but it is not so, as uh, I know many of the people are quite experienced over here. Some are younger, some are even older than me, more experienced, more knowledgeable. But what I look after before taking a trade on the charts through options, I would like to share those things. And we are looking at the screens that what topics will be covered today. What is the scope of derivatives via options? What is risk reward? What are options and option Greeks? What is option pricing? Factors we should consider while taking a particular strike price, that will be catered during the live example when we show a chart. How to select a strike price is one of the important and the prominent task, and the key topic. We all know that how to take an call on index and stock option. So this is the most prominent which will be looking out during the session. Some of the important terminology, all are aware of it. What is IV, what is OI, open interest, PCR, how does OI and PCR work, and last but not the least, rules that we should not forget while taking an options. So firstly, I would like to take the first topic, the scope of trading in derivatives via option. Definitely the scope of trading in options onto the ongoing conditions and even the market conditions. The scope of derivative is very vast for the coming years, and options will be one of the key thing which will be driver of the market going ahead as per the data and the statistics which are available in the market. In today's world, most of the traders, I'm talking basically from the traders perspective, will come across from the semi traders also. But initially, most of the traders like us who earlier used to trade in the equity traditional for normally 1 or 2% during the course of the day, and we know how market has started behaving irrationally, and also we know that we must be a semi investor who must have invested in mutual fund for a secondary income or a constant income, but the NAVs also have gone down drastically since last 1 to 2 years. So if I'm an intraday trader and if I'm looking for a trade for 1 to 2% even in equity or futures, it takes a hell lot of pain and a task to identify, post identification, to get that 1 or 2% move when there is no volatility in the market or the market are less volatile. It takes hours or probably one whole trading session to get out of a particular trade. Wherein if we compare it the same thing with the option, earning same amount of percentage is quite easier if we are on the if we have selected the right trend and the right strike price. Why? Just because the lot size remains the same, but
to achieve 1%, if a particular stock is moving around it, suppose if we take a layman example where stock price is somewhere around 200 rupees, and to get 2%, we need to get 5 rupees on a particular future, wherein for option to earn the same thing, rupee movement or 1.5 rupee movement will give you the same amount on a lesser time frame with a lesser margin and good entry and exits. The key points we should take into the consideration, like for semi-optional traders, option works well compared to future in terms of volatility when consideration comes into the stock option. Explanation for the same will be taken ahead into the terms of example. The major thing which we would like to remember in options are three factors, which is the second option, risk reward. Risk reward is the key factor which we have to take care during the identification and post identification, how to manage the risk reward. The time frame what we are looking for, if a particular time frame what we have selected for a trade, we should take an entry and exit on a particular time frame, and we should not fumble with the another time frame or switching the time frame, because switching the time frame will change the direction or probably our view on what we have taken it. Stop loss, which is the key factor for risk reward, has to be maintained always into the system, and if stop loss comes, kindly trigger the stop loss so we can basically save our initial capital to take another trade. Coming on to what is option, right? Options are, this is a basic definition which everybody knows, but I'll just brief it very quickly. Options are financial instruments that are derivative based on an underlying asset, which is probably, if we take an example, that if we are buying a Reliance, one lot of Reliance will probably take a couple of margin money, and if we take the same thing on the option, selecting a particular strike price, the amount what we infused will be very low. Options are definitely more complicated as discussed, but there are certain points which have to be taken care, that the option price doesn't just move up and down. They consider following factors, which are time, implication, implied volatility, and the stock underlying stock movement. If the underlying stock movement has been picked up correctly, the direction of the option what we will be taking will be very quick and fast. Next the next topic is very important from the option picking strike point of view. What is option Greeks? Option Greeks is a behavior of an individual option where each Greek has a different predictable, it behaves very differently under every circumstances according to the option price change. The four important Greeks are delta, gamma, theta, and vega. But in today's session, we'll probably look the key factor, important Greeks is delta and theta. What does each Greeks means? Delta is the immediate direction what we are looking on a particular strike price we have selected. I would like to bring to a notice here over here that in our own software we have an option to particularly look the delta pricing. All the option Greeks on a particular one window, which I have taken a snapshot over here. Probably will take it into the consideration during the live chart. Gammas are gaining delta. It is just another form of delta. Vegas are volatility and thetas are time decay. I will just brief you with the definition of deltas. Deltas are the most basic and the important of all the option Greeks. Why? Because it is basically a tracker for you to understand the underlying movement in what direction we are doing. Deltas are always positive for calls and negative for puts. This is a basic definition, and probably who are using it on a day-to-day basis will be much more aware to it. Here, why it is important and why I'm taking this topic over here is because there are many people who must have stopped trading because of the uncertain events which have occurred over here, or probably the loss which they have incurred over here, and they must be well versed with the options, but they must not be keeping in hand why they are not trading. So to get them into the trading from the perspective, these things are very important, and these are basic, so it is very important to understand these things.
Theta. What is theta? Basically, theta comes into the play during the last week of the expiry. Today, I will take an example of the theta in the due course of the webinar, how it decays basically. So theta is nothing but the time decay. It is an much more time value of an option which loses every day. Theta is always negative for the numbers in the time decay. Theta increases as the expiration approaches. The thing is if a particular stock has a theta of say 0.10, they will tend to lose 0.10 paisa of value each day, all else being equal. All else being equal means rest, alpha, beta gamma and all remains constant, and if only theta has to work, it should be like 0.10 theta means it will definitely lose 0.10% of the value each and every day. This is especially true because it when the expiration acceleration comes closer, it works. It starts its working very frequently and on a high level basis. So basically, to conclude, option Greeks must be confusing, but to understand them is an huge benefit for the traders. So I've taken these two topics as a key factor because delta it has to be taken care for each and every trade, and theta also has to be taken care when we are nearing to the expiry. Next is what is implied volatility. Implied volatility shows how the market thinks of an underlying move. Implied volatility can quickly drop after the news, which is known as an volatile crunch. What is implied volatility? We have seen in the last month how the VIX have taken the rise from the initial levels after the consolidation for almost, if you can say, couple of years. VIX have taken a breakout around the 30 levels over here, and it has reached the all-time previous high of 89. Last time when it was around 89, it was in the year 2009. So after so many long years, if you see the monthly chart of the option VIX, it has taken a major breakout around 35 odd levels and have reached 86. What happens during these things when the VIX are continuously moving up, that is IV, all the premiums start moving up on the higher basis. And whenever we understand that, we must have heard a common language. अरे आज प्रीमियम घट नहीं रहा है, मार्केट में बाजार इतना टूटा, स्टॉक इतना नीचे गिरा, फिर भी प्रीमियम्स घट नहीं रहा है. नहीं घट रहा है, उसका रीजन ये है कि the underlying objective of the market, India VIX, which is the monitor system of the volatility, it is on a higher scale. So definitely individual stocks और उसकी VIX जो होगी वो भी higher scale पे रहेगी, and which will not allow the stock option premiums or index option premium to fall as per the normal fall it should happen. So अगर एक एग्जांपल ले डेल्टा के ऊपर के कि एक सपोज स्ट्राइक पे एट द मनी का निफ्टी है 90 to 100 पे और हम ले रहे हैं 90 to 100 का इंडेक्स ऑप्शन और उसकी डेल्टा है 0.5, क्योंकि एट द मनी की डेल्टा हमेशा 0.5 होती है फॉर कॉल्स. जितनी एट द मनी की डेल्टा ऊपर के साइड पे होती है 90 to 100 की, उसकी डेल्टा हमेशा 0.5 के ऊपर होती है बिकॉज दे आर इन द मनी कॉल्स. एंड जो नीचे की साइड की होती है विच आर आउट ऑफ द मनी कॉल्स, उसकी हमेशा डेल्टा 0.5 से कम होती है. एंड इट इज एग्जैक्टली रिवर्स इन टर्म्स ऑफ पुट्स. तो जब भी ये चीज होती है कि डेल्टा अगर 0.5 ले रहे हैं और समझो मार्केट घट रहा है, तो 0.5 से डेल्टा मतलब 1 रुपए की चाल पे 50 पैसा पुट प्राइसिंग घटनी चाहिए, बट वो नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि विक्स उसकी बहुत हाई होती है, तो प्रीमियम्स पकड़ के रखता है. तो एक साथ दो फैक्टर, तीन फैक्टर अलग अलग काम करते हैं. द ऑप्शन ग्रीक्स शुड बिहेव इंडिविजुअली. Unless other factors come into the play, it doesn't behave rationally what it should actually behave. This is the actual meaning of implied volatility. What are option pricing? This is the basic thing which we have to take into the effect कि option price क्या क्या चीज को इफेक्ट करके मूव करता है, क्या क्या चीज को वो कंसिडरेशन में लेता है जब एक पर्टिकुलर मूव आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन प्राइस इज द इंटरेस्टिंग वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू. बराबर है. क्या क्या इफेक्ट, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट व्हिच ऑप्शन प्राइस टेक्स इनटू द कंसीडरेशन. करंट जब ऑप्शन इज बेसिकली मेड ऑफ टू थिंग्स, कॉल्स एंड पुट. तो जब करंट प्राइस या स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है तो बेसिकली कॉल मतलब तेजी जो ऊपर की साइड पे होती है, द कॉल ऑप्शन
टेंड्स टू मूव अप व्हाइल पुट ऑप्शन टेंड्स टू डिक्रीज। ये बेसिक चीजें जो सबको पता है, राइट। और देर आर अदर फैक्टर्स जैसे कि एक्सरसाइज प्राइस और वॉलेटिलिटी। जब वॉलेटिलिटी, मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल बताया, जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन प्राइस और कॉल की ऑप्शन प्राइस और पुट की ऑप्शन प्राइस दोनों एक साथ इंक्रीज होती है। हालांकि एक घटनी चाहिए एक बढ़नी चाहिए, बट वो नहीं होती बिकॉज द फैक्टर ऑफ वॉलेटिलिटी कम्स इनटू द प्ले। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर एज अ की ऑब्जेक्टिव व्हेन देयर इज अ मेजर इवेंट, या फिर ऐसे वॉलेटिलिटी में विक्स जब अचानक से ब्रेकअप लेती है तो ऑप्शन प्राइसिंग इसी समय सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट विल टेंड टू इंक्रीज इररेशनली। Some of the key points what we take into the factor that are data reading, what we say is open interest and volume. Open interest की basic definition सबको पता है, it is what the total number of contracts which are still open into the system or which have not been exercised. Volume is a basic definition. Derivative volume is the number of contracts traded during a given period. Hence volume reflect number of contracts that change hands from a seller to a buyer, regardless of whether it is a new contract being created or it is an existing contract. मतलब इंट्राडे या पोजिशनल जो भी होता है, अल्टीमेटली हैंड चेंज हुआ एक बाय एक सेल तो वॉल्यूम के काउंट में ऐड हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से slide which one should remember and one should even take a note of it. जैसे अब सबको पता है कि ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या होती है, लॉन्ग बिल्ट अप इन फ्यूचर्स किसे बोली जाती है। व्हाट इज लॉन्ग बिल्ट अप इज जब अपनी प्राइस ऊपर जाती है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाती है, एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज नोन एज लॉन्ग बिल्ट अप एंड विच इज बुलिश इन नेचर. These data are readily available in our software at in reports and derivative open interest report. यहाँ पे readily available है अपने पास on a single click. अगर आपको खाली इंडेक्स के कोई कॉल पुट की लॉन्ग बिल्टअप जाननी हो, पर्टिकुलर स्टॉक्स की मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस जाननी हो, खाली ऑप्शंस की जाननी हो, खाली फ्यूचर्स की जाननी हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ सिंगल क्लिक. लॉन्ग अनवाइंडिंग, व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग? ये जो है प्राइस डाउन ओआई अप, ये है बेसिक सिनेरियो की ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन विच इज इन फ्यूचर्स. बट ऑप्शंस में जब इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट रीडिंग आती है ऑन पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स. जैसे कि अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में ऑप्शन चिन्ह देखते हैं तो कॉल एंड पुट की साइड पे होती है, तो वी रीड इट एज अ पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट एज अ राइटर फ्रॉम द राइटर्स पर्सपेक्टिव कि 9500 कॉल जहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो हम क्या बोलते हैं कि 9500 विल बी दी रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट. वाई? बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, तो हम बिल्डअप को कॉल राइटिंग की तौर से जानते हैं. सो टेकन द नॉर्मल कंडीशन इनटू द सिचुएशन, पुट राइटिंग क्या होती है? जब प्राइस नीचे आती है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाती है तो उसे पुट राइटिंग कहते हैं. विच इज पुट राइटिंग मतलब हम जब पुट की साइड देखते हैं और पुट राइटर्स देखते हैं तो हम तेजी की ओर मानते हैं. सो विच इज अ बुलिश साइन. What is put unwinding? It is exactly the opposite of the put writing, जहाँ पे which are the price are always gaining when open interest is always falling. तो which is a bearish signal, वहाँ पे put unwinding होती है. तो ये केस में कि भाई unwinding मतलब bearish मतलब कि हमारी जो तेजी की पोजीशन थी इधर उससे कम हो, that is getting unwind. So अगर कोई open interest तेजी की ओर बढ़ा रहा था तो कोई पर्टिकुलर रीजन से या कोई अनदर रेजिस्टेंस लेवल से वो अटक रहा है और वहां से पोजीशन अनवाइंड होती दिख रही है. कॉल राइटिंग इज प्राइस डाउन ओआई अप विच इज अ बेरिश सिग्नेचर, क्योंकि जैसे अभी डिस्कस किया कि कॉल राइटिंग, कॉल में एक पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट लेवल पे देखते हैं तो हम उसको राइटिंग की तौर पे मानते हैं, एंड जब उसकी प्राइस घटना चालू होती है और उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू होता है विच इज अ बेरिश सिग्नल, मींस कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो हम शॉर्ट की ज्यादा बना सकते हैं. And what is call unwinding is just the opposite of call writing, which is and very important when we read the option. This is basic comparison of option price and volume. Just an normal slide which we have to look into. One can take a note of it. I'm just taking onto the first slide again. If anyone wants to make a note of it, I'll take a pause for a minute and one can
take jot down the points whoever feels it is very necessary for them. So, moving on to the next slide. ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा बिल्डअप हम देख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे. दिस इज द स्नैपशॉट विच आई हैव टेकन बिकॉज कैसे क्या होता है कि जब आप डेली डेटा ले लेते हैं उसके बाद जो प्राइसेस है वो यहाँ पे कभी कभार नहीं दिखती है. सो अगर आज के दिन पे देखे तो मैंने ये लाइव मार्केट में एक स्नैपशॉट लिया था जहाँ पे मैंने लॉन्ग बिल्टअप डेटा फ्यूचर्स का कैप्चर करने की ट्राई की है फॉर नेक्स्ट मंथ. सो अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को मॉर्निंग से दिस इज द स्नैपशॉट विच आई हैव टेकन समवेयर अराउंड एट 132. तो अगर मैं मॉर्निंग से अगर आप मॉनिटर करते हो ना रेगुलर बेसिस so you will probably be able to make it out कि which stocks are into the bullish mode, which stocks are into the bearish mode और किसके अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग होने की चालू की है मतलब कि तेजी अटक रही है या शॉर्ट कवरिंग आ रही है मतलब कि भाई कंटिन्यू स्टॉक एक ठुक रहा था और अचानक से शॉर्ट का मतलब शॉर्ट रुककर थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है. तो एक बार अगर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर प्रोबेबली यू आर अकॉर्डिंग टू दैट माइंडसेट यू कैन सिलेक्ट द फिल्टरेशन दैट आपको खाली लॉन्ग जमती है आपको खाली शॉर्ट जमती है और यू आर एन नोवाइस ट्रेडर वेयर आप अकॉर्डिंग टू द मार्केट डायरेक्शन हमेशा चलते हो. सो इफ यू आर एन नोवाइस ट्रेडर वेयर यू कैन trade on both the sides, you keep in filtration accordingly where you have an option you can filter all. तो जब आप ये फिल्टरेशन ऑन रखते हो तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि नियर टर्म या नेक्स्ट जो भी आपको मंथ में करनी है नियर इज द करंट मंथ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट मंथ एंड फार इज द थर्ड मंथ. तो एज आज एक्सपायरी थी तो नियर मंथ लेके आज अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है. सो आई एम टेकिंग ऑन द नेक्स्ट मंथ ओनली फ्यूचर्स एंड आई एम टेकिंग ऑन अ बुलिश रन राइट. उसके बाद एक रिफ्रेश कर दिया तो आप मेन चीज क्या याद ध्यान रखनी है कि आपकी सिंस यू हैव टेकन प्राइस अप ओआई अप तो जितने भी आपको यहाँ पे फिल्टरेशन आएंगे वो जो भी पॉजिटिव स्टॉक्स है उसके ही आएंगे. तो उसमें जाके पहले आपको यू हैव टू सॉर्ट ओआई चेंज. ओआई चेंज इस क्या है कि बेसिकली कल से आज किस में ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है तो जिसमें सबसे ज्यादा बिल्डअप ओआई हो रहा है वो सबसे ऊपर आ जाएगा. फिर पर्टिकुलरली आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नेचर टू ट्रेड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन. अब यहाँ पे देखे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है हिंडाल्को नेस्ले और टाटा मोटर्स विच आर द टॉप 5 स्टॉक. उसमें से अगर आप देखो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये जो दो स्टॉक्स है इसकी ऑप्शंस लिक्विडिटी नहीं होती है. तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो इसको यहाँ ध्यान रखकर तो इसमें ऑप्शन हम ट्रेड नहीं कर सकते. सो वी विल बेसिकली हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज हिंडाल्को. हिंडाल्को बहुत ही लिक्विड होता है ऑप्शन ट्रेड की तौर पे. और अगर आप आज हिंडाल्को का चार्ट देखोगे विच इज इंट्राडे राइट दिस इज द chart setup which I normally use and I take a trade on a particular chart setup only wherein I have taken average. एक सुपर ट्रेंड है पैराबोलिक्स आ रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेक इनटू द कंसीडरेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ आरएसआई राइट. तो अगर आप आज ये देखोगे कि हिंडाल्को में आप इंट्राडे चार्ट है ये और हिंडाल्को में कल ही क्लोजिंग के टाइम थोड़ी तेजी बरकरार आई मीन बनती हुई दिख रही थी हिंडाल्को में. बट सिंस इट वाज द क्लोज तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे. सर्टेन प्रिंसिपल्स है विच आई विल डिस्कस अहेड. तो जब यहाँ पे हिंडाल्को में आपको इट वाज एन क्लियर इंडिकेशन दैट हिंडाल्को इज चेंजिंग द ट्रेंड. इट इज फ्रॉम द साइडवेज और टू द फॉलिंग इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू द पॉजिटिव सेंटिमेंट. ये अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो लेवल है वहां पे अपने को फर्स्ट इनिशियल साइन ऑफ बाइंग दिख रही है राइट. सो एक बार ये पर्टिकुलर साइन दिखती है तो अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है तो वी विल हैव टू ट्रेड एन ऑप्शन. एंड ये अगर ऑप्शन ट्रेड करना है तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विच वी आर डिस्कसिंग ऑन गोइंग कि उसकी डेल्टा क्या है पर्टिकुलर थीटा क्या है जो अपने को यहाँ पे दिखती है ऑलरेडी.
अगर आप FY करते हो और हिंडाल्को का फ्यूचर है, बराबर है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की अगर आपको यहाँ पे एक बार प्राइस लिस्ट शॉर्ट करते हो, तो करंट प्राइस है आपके अंडरलाइंग प्राइस ऑफ एन पर्टिकुलर फ्यूचर इज 118, सो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस विच इज 120, राइट। तो 120 जो स्ट्राइक प्राइस है विच इज ऑलमोस्ट एट द मनी, तो एट द मनी की डेल्टा हमेशा 0.5 या उसके ऊपर होगी, ठीक है। ये आज के हिसाब से, क्योंकि आज वो ऑलरेडी इन द मनी हो गया, सो इट इज शोइंग यू 0.86, बट अगर आप yesterday देखते तो इट वुड बी नियर टू 0.5 और प्लस माइनस इन पॉइंट्स ऑफ 0.5, राइट। सो अगर 120 की कॉल हम अगर सिलेक्ट करते थे कल, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता था। एक तो उसने मेरे सेटअप पे बाई ट्रेंड उसके मॉर्निंग में कल बता दिया था उसने कि वो बाई है, बट 120 की प्रीमियम बहुत लो थी, सिंस वी आर नियर टू एक्सपायरी, डेफिनेटली ये प्रीमियम हमेशा लो होगी, एंड क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी था yesterday, so it is better to take a trade well on the day of the expiry कि जहाँ पे प्रीमियम कम हो, सो आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन हो। एंड अगर कल एक बार ये सेटअप पे बाई कॉल जब जनरेट हुई थी अराउंड 0.90 के लेवल पे, ठीक है, मतलब 1 रुपया, सो व्हाट यू आर गोइंग टू लूज इज ओनली 1 रुपी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अगर 120 के ऊपर अगर ये नहीं चलता स्टॉक, तो आपको मैक्सिमम लॉस होता वो है 1 रुपया, 1 रुपया इंटू योर लॉट साइज, राइट। सो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अभी आपका डिफाइन हो गया कि भाई मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को 1:1.5 या 1:2 मेंटेन करना है, और ऑप्शंस है तो यू विल many a times get good amount of risk reward, 1:4 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, एंड 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा इंडेक्स ऑप्शंस में जरूर मिलेगा। वी विल लुक इनटू इट इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर यहाँ पे आप लेते और होल्ड करते, राइट, अगर आज मॉर्निंग में भी अगर आप निकालते तो एटलीस्ट 1:2 के रेशियो में आपको इजी एग्जिट मिल जाता, समवेयर अराउंड 3 to 4 रुपीज के आजू बाजू। देन स्टॉक रैलीड, वी नेवर न्यू कि आज स्टॉक या मेटल्स इतना जोर से पुल बैक दे देगा, राइट। तो ये थी हाउ टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस फ्रॉम दी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ये है बेसिक डेफिनेशन जो सबको पता है, व्हाट इज पीसीआर, विच इज पुट कॉल रेशियो, राइट। इट इज एन टेक्निकल इंडिकेटर फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट। This ratio basically represent a proportion between the volume of all the put option and all the call option purchased on any given day, right। अब इसके अंदर दो चीज है, पीसीआर कॉन्टेरियन और एक है पीसीआर इनलाइन डायरेक्शन। व्हाट डज पीसीआर इनलाइन डायरेक्शन मींस, जो हम नॉर्मल डे पे या नॉर्मल एक आम इंसान पुट कॉल रेशियो को समझने की ट्राई करता हो, जहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ पुट्स और टोटल नंबर ऑफ कॉल डिवाइड करके अगर उसको मिलता है, दिस इज अ पर्टिकुलर रेंज विच इज प्री डिफाइंड बाई अक्रॉस ऑल द बुक्स वेर एवर यू रीड, और यू कैन गूगल इट आउट अ पर्टिकुलर रेंज की पीसीआर की रेंज क्या होती है, राइट। whenever PCR is below 0.09, it is always said that the direction of a particular strike what we are deciding for a particular stock is into the bearish, it is the main underlying trend is bearish according to the PCR. Like if it is between 0.9 and 1.2, it is known as it sideways। वहां पे जहाँ पे sideways is basically a phase of consolidation, जहाँ पे ना क्लियर ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, and above 1.2 it is known as in bullish। Okay. What does contrarian look into? Who are contrarians? Basically contrarians are nothing but they are the investor who thinks otherwise, जो नॉर्मल मार्केट के अगेंस्ट बेट करना चाहता हो, बराबर है। However, the contrarian investor thinks otherwise, if the PCR is bearish, which is if the PCR is low, if the PCR is in the range of 0.6 to 0.8, which is point below 0.9, right, तो नॉर्मल हम जो देखेंगे उसका रीडिंग है बेरिशनेस, बट जो कॉन्टेरियन होता है, जो बेसिकली मार्केट को अदर साइड से दिखता है, या हेजर्स होता है या स्पेकुलेटर्स होता है, जो हमेशा मार्केट को मार्केट के सेंटिमेंट हमेशा अलग तरीके से देखता है, तो उसके लिए ये जो रेंज है वो बुलिश कहलाती है। एंड दीज आर दी बेसिक पर्सन्स और दी इंस्टीट्यूशंस हु टेक्स द कॉन्टेरियन कॉल, जहाँ पे हमको ऑप्शन बिल्टअप डेटा जो दिखती है कि भाई 9500 कॉल या पर्टिकुलरली 9000 की पुट में हमेशा
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखता हो, अगर मार्केट घट रहा हो तो भी जो 9,000 का पुट बेच के बैठा हो डर नहीं लगता हो उसको, वो हमेशा मोर एडिशन करता हो, दोज आर नोन एज कॉन्टेरियंस. So for them, the PCR range between 0.68 and 0.8 is bullish for them. So however, the low PCR is good, and for high PCR, they are bearish. So whenever the range goes above 1.2, so अपन normal scenario में bullish कहलाते हैं. तो उनके लिए जब रेंज 1.2 के ऊपर, जब 1.4 और 1.8 के बीच में ट्रेड करती है, तो दे आर द वन हु फील्स कि यहाँ से अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेगा या पर्टिकुलर स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा या पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन प्राइसिंग जो करते हैं उन लोग एक ये करते हैं कि एक स्टॉपेज लगा देते हैं उसको, राइट. दे आर इन टुडेज वर्ल्ड दे आर नोन एज स्मार्ट इन्वेस्टर्स हु कंटिन्यूअसली कीप ऑन हेजिंग देयर पोजीशंस. This is the basic summation of PCR in line of the direction and PCR quantarian. Hope this is very clear to the speaker. I mean, things are very clear. Any doubt about this can probably raise a question at the end of the session. Right. Some of the basic rule, which I will basically take it at the end of the session. Right now, I would like to take you to some examples which we have probably looked into or which I have kept ready. आज के दिन मार्केट तो सबको सरप्राइज कर दिया बाय बिग गैप अप ऑफ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स. निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर खुली. उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज में ही थी सुबह से निफ्टी. गैप अप होने के बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर निफ्टी वाज इन द रेंज, राइट. और अगर आप RSI फॉलो करते हो, जो टेक्निकल्स वाले रहेंगे हु आर वेरी मच कीन ट्रेडर, उनको RSI पे जो ज्यादा स्ट्रेस देते हो उसको पता हो कि जब RSI एक पर्टिकुलर लेवल पे आती है, विच बैक टेस्टेड किया होता है कि निफ्टी की जब RSI 75-80 के ऊपर जाती है इंट्राडे में, देयर इज अ टाइम वेयर निफ्टी विल स्टॉप राइजिंग और वहां पे स्टॉपेज लेके वहां से करेक्शन दे सकती है, राइट. सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे इनिशियली समवेयर अराउंड 10-15 RSI वाज ऑलमोस्ट at the high end point of view where एकदम आपकी ओवरबॉट हो गई थी, and it was a kind of feeling where Nifty can fall, but it didn't. उल्टा उसने टाइम कंज्यूम किया, प्राइस वाइज उसने करेक्शन नहीं दिया, टाइम वाइज करेक्ट किया, RSI थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे अगेन एक बुलिशनेस बताया और वहां से उसने एक स्पर्ट दिया जो आपका ऊपर की ओर 9860 के आजू बाजू गया, विच वाज द टॉप प्राइस समवेयर अराउंड 12 o'clock. ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे आज के दिन पे. अगर यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन की कॉल करनी हो, जैसे अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली डेटा बिल्डअप हो रहा था निफ्टी के इसमें कि 9900 की जो कॉल है वहां पे कंटिन्यूस आपको एडिशन हो रही थी आज के दिन पे. ये रहा 9900 की कॉल. अगर आप देखोगे सुबह से अगर आप यहाँ पे वॉच करते रहेंगे तो 1900 की कॉल में कंटिन्यूस एक एडिशन था, ऊपर से 9850 की कॉल में भी एक कंटिन्यूस एडिशन था, राइट. ये एडिशन प्राइस के साथ हो रही थी, विच मींस देयर वाज अ पर्टिकुलर थिंग विच वाज स्टॉपिंग मार्केट एट द हायर लेवल्स टू गो. तो जब 1900 की कॉल्स में हाईएस्ट डेटा बिल्डअप हो रहा था वहां पे राइटिंग हो रही थी, उसका मतलब कि एक 99 जो एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा था, जो इनिशियली 2 दिन पहले 9500 था, एंड 9500 का जो ऑप्शन चेन था अगर आप देखोगे तो उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बेसिकली अभी जो बता रहा है वो 7,62,000 है. इनिशियली इट वाज 2 days बैक समवेयर अराउंड 26 to 27 lakhs. ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस था, बट जैसे मार्केट ने कल एक नया रूप लिया तो यहाँ पे जो 9500 के कॉल राइटर्स थे उनको थोड़ी घबराहट हुई, एंड बेसिकली दे स्टार्टेड अनवाइंडिंग देयर पोजीशन इन 9500 कॉल, और वो जो पोजीशन थे उन लोग ने धीरे धीरे ऊपर 98, 99 और 10,000 की स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट कर दी, विच वाज विजिबल वेरी मच येस्टरडे. बट किसी को ये नहीं पता था कि वो 200 पॉइंट ऊपर लेके आज ही खत्म कर देगा, राइट. तो 1900 में सुबह से फिर एक बार आज अगर कंटिन्यूस वॉच करते हैं हम तो 1900 के पर्टिकुलर कॉल में कंटिन्यूस मॉर्निंग से एडिशन था.
विच वॉज वेरी मच विजिबल। सो हमने आज एक ट्रेड देखा था यहाँ पे कि जब निफ्टी हमारी 9850 के आजू बाजू जब रुक गई थी बढ़ना, तो एक 9850 के कॉल में हमने एक ट्रेड देखा था, राइट। यहाँ पे सेम टाइम है 12:30 बजे, ये पर्टिकुलर सेटअप है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने एक सेल कॉल जनरेट करा था, ठीक है। why I have selected 9850 as a strike price, since it is the expiry, the premium what we will get to buy or sell will mostly be at the money or in the money। अब in the money में कैसा है कि प्रीमियम ज्यादा होगी और वॉलेटिलिटी एक्सपायरी के दिन अगर होती है तो we tend to hit a stop loss in the volatility। तो at the money वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है that is the most prominent to trade on a particular expiry day। सो अगर यहाँ पे देखे तो 9850 में एक सेल कॉल बन रहा था, ठीक है। दिस इज फ्रॉम दी सेलिंग पर्सपेक्टिव। अगर जो सेलर्स इंट्राडे में सेल करना चाहते हो तो इट वाज वेरी प्रोमिनेंट एंड इट वाज वेरी इजी कि यहाँ पे हमारे एक सुपर ट्रेंड जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक सेल कॉल जनरेट हुआ था अराउंड 43 to 45 लेवल्स के आजू बाजू, राइट। तो वहां पे एक पर्टिकुलर रेंज लेके इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख देंगे प्रीवियस बार का, विच इज अ बेसिक रूल विच आई यूज व्हेन आई टेक अ ट्रेड। और दूसरा एक चीज विजिबल यहाँ पे क्लियरली था कि आरएसआई तुम्हारा नेगेटिव डाइवर्जन दे रहा था। यहाँ पे जब आरएसआई तुम्हारी टॉप हुई थी 91 की, तब प्राइस था तुम्हारा 33 रुपीज। सेकेंड टाइम जब प्राइस ने नया हाई हमारा 34.50, आरएसआई वाज 89। और यहाँ पे जब प्राइस ने स्पर्ट किया 51 रुपीज पे, आरएसआई वाज clearly visible that it is taking a negative divergence। This was the second confirmation along with this particular sell card setup के साथ। So it was very easy to take a trade and for couple of hours it maintained on a lower side and ultimately जो अपने को रिस्क रिवॉर्ड रखना था, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका 10 रुपया था, राइट। 1:2 is 20 रुपीज एंड मोर देन 20 रुपीज अगर आपको यहाँ पे मिली है, सो अ गुड ट्रेड। सेम वे अगर ये राइटर्स के लिए थी, बट अगर कोई राइटिंग नहीं करना चाहता हो बिकॉज ऑफ दी मार्जिन, जहाँ पे अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी हो, तो उसके लिए 9850 की हम पुट देख सकते हैं कि उसने क्या चाल चली है और वो क्या बता रहा था, ठीक है। सेम टाइम 1230 1240 के आजू बाजू 9850 की पुट सुबह में जब मार्केट तेज हो रहा था तो ऑब्वियसली पुट की प्राइस डिमिनिशिंग होगी एंड मार्केट वाज राइजिंग सिंस लास्ट 2 दिन से ऊपर बढ़ रहा था, मार्केट वाज राइजिंग सिंस लास्ट 2 days। डेफिनेटली द पुट प्राइस हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, वो आप देख सकते हो। एंड मार्केट जब नीचे 92 93 के लेवल पे था तो 98 की पुट इतनी एक्टिव भी नहीं होगी। सो 98 की पुट अगर देखोगे तो लास्ट 2 दिन से एक्टिव हुई है। तो जब मार्केट एक स्टेगनेंसी पे आ गया था और जब प्राइस यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गई थी, वी हैव टू मॉनिटर इट वेरी क्विकली एंड ऑन अ कांस्टेंट बेसिस आफ्टर सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्राइक प्राइस। दो चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अपने जो ट्रेड सेटअप पे, एक तो है कि आरएसआई का प्लेसमेंट कहाँ पे है। आरएसआई आपको ऑलमोस्ट बॉटम पे है, ठीक है। यहाँ से आपको आरएसआई नीचे जाने की जगह बहुत कम है। मार्केट एक इंडिकेटर दे रहा है कि भाई मेरी ऊपर जाने की इंडेक्स में जगह कम है, ठीक है। तो दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आपको यहाँ पे मैच हो रहा है, वेयर अ बाई आल्सो ऑन द सुपर ट्रेंड हैव जनरेटेड ओवर हियर, ठीक है। तो ये कॉल है जहाँ पे आप 25 रुपीज के आजू बाजू या 25-30 रुपीज के आजू बाजू अगर ये आप बाई करते हो पुट ऑप्शन, कीपिंग द प्रीवियस लो जो ये कैंडल का है एज अ स्टॉप लॉस, राइट, जो है आपका 15 रुपया। सो टू अंडरस्टैंड रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 15 रुपए का अगर रिस्क है तो एटलीस्ट आपको 30 रुपया तो मिलना चाहिए। 1:1.5 में 25 रुपया मिलना चाहिए। अगर आप 35-40 के आजू बाजू भी लेते हो तो आपको 2 ही कैंडल में आपका रिटर्न मिल गया। सो योर ट्रेड कंप्लीट्स। उसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस को अगर आपको फिर से ट्रेड करना हो तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, विच इज दी अनदर सुपर ट्रेंड लाइन, वो जो हमने एक रखी है एज अ सपोर्ट लेवल, वहां पे आती है। तो दिस सुपर ट्रेंड लाइन ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। तो आपको अगर लोअर कैंडल की जो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लगती हो तो आप सुपर ट्रेंड की स्टॉप लॉस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सेकंड टाइम आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली समवेयर अराउंड एट 2 o'clock, जब मार्केट ने थोड़ा सा नीचे
द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट वाज डेफिनेटली करेक्टिव। जो यहाँ पे अगर हम निफ्टी में देख सकते हैं कि उसका डायरेक्शन 2 बजे के आजू बाजू भी इंट्राडे में डेफिनेटली नीचे के और ही था, ठीक है। तो अगर वहां पे आपने अगर सेकंड इनिशिएटिव लिया होता 35 में, राइट, तो जो ये आपका प्रीवियस कैंडल का जो लो है विच इज दिस वन ओनली 20 रुपीज, तो 15 रुपए का है रिस्क आपका, तो रिवॉर्ड आपका 30 रुपीज का होना चाहिए, विच इज नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, रिलायंस का। जैसे अभी सबको पता है कि रिलायंस ने काफी दिनों से अच्छा मूव किया था। द मेजर ट्रेंड on the daily chart is positive for Reliance. See, this is what I am showing you my setup. Everybody will be having their own setup. तो जो भी पर्टिकुलर आपका सेटअप है और उससे आप अगर 100% कन्विंस्ड हो, यू पर्टिकुलर कीप वॉचिंग अ पर्टिकुलर सेटअप ऑफ योर्स, बट उसके ऊपर जब आपके सेटअप में बाई या सेल आता है तो इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं जो अपने को ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जब आई विल take this topic very quickly कि how to select a particular option strike price, ठीक है। so if we are trader and if you want to say कि अपने को पर्टिकुलर जैसे रिलायंस की बात कर लेते हैं कि रिलायंस में जब नीचे से ब्रेकआउट आया समझो 1000 रुपए के आजू बाजू, और वो जो ब्रेक है वो इनिशियली स्टार्ट ऑफ द मंथ में आया था, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में हमेशा एट द मनी की जो प्रीमियम्स होती है दोज आर वेरी हाई, and definitely to pay those hefty premium from the pocket, we are definitely reluctant to pay those hefty premium सोच के कि भाई अचानक अगर कुछ अनसर्टन आ गया मूवमेंट तो we will tend to lose more premium. So always keep a basic rule of taking at the money plus minus 2 strike price. Always monitor those 2 strike price on a regular basis. सपोज अभी किसी एक ट्रेड में पर्टिकुलर आपको अगर ट्रेड लेना हो तो उसकी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस की इन चार्ट देखे उसको, उसकी डेल्टा को पहले कंपेयर करे कि वो कहाँ पे प्लेसमेंट है, उसका थीटा कहाँ पे है, एंड एक प्रेडिक्शन करे कि अपने चार्ट पे पर्टिकुलर अगर ब्रेकआउट आता है तो कितने टाइम में वो कितना प्राइस मूव करेगा। उसके हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है कि अगर मेरे को लगता है कि स्टॉक 2 दिन के अंदर 5 से 10% मूव कर सकता है, सो अगर रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 5% करे तो 1100 की भाव है, 1% आपका बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर तो 5% मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। तो रिलायंस जैसे स्टॉक में आपको एट द मनी +2 की स्ट्राइक प्राइस से ही काम करना पड़ेगा, भले उसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो, बट दैट विल डेफिनेटली you will have to pay a little bit high premium for the premium quality stocks. और एक एग्जांपल जैसे कि आज का ही मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि अगर आप रिलायंस की देखो तो रिलायंस में काफी दिनों से 1500 की स्ट्राइक प्राइस पे कंटिन्यूअसली आपका हैवी रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा था, और आज भी देखोगे तो सिंस मॉर्निंग देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट व्हिच वाज कंटिन्यूअसली शोइंग। ये तो लास्ट में अनवाइंडिंग है क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो डेफिनेटली प्राइसेस जब ड्रॉप होते हैं तो अनवाइंडिंग होता है। अगर आप मॉनिटर करते तो लास्ट 3 दिन से 1500 की कॉल में कंटिन्यूस एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। तो आपको रेसिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के तौर पे से कैसे निकाल पाओगे कि जब 1500 की कॉल पे कंटिन्यूस ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है और उसका जो प्रीमियम होता है वो आप समेशन उस स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर दीजिए तो वो टेंटेटिव आपको रेजिस्टेंस एक लेवल मिल जाएगा। सो सपोज 1500 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर 20 रुपया प्रीमियम है तो 1520 1530 का जो लेवल होता है हमेशा विच शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक प्राइस। देखे तो लास्ट टाइम जब रिलायंस ने टॉप किया था वो 1500 के लेवल पे था, और आज भी अगर आप देखोगे तो उसने ऑलमोस्ट 1500 के करीब उसने टॉप बना, विच कैन बी कंसिडर एज अ डबल टॉप। अगर आप इंट्राडे में देखिए कि उसने टॉप कभी बनाया था, उसने जब टॉप बनाया तो ये कैंडल पे बनाया था। जो अगर कैंडल स्टिक एनालिसिस करते वो तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन करा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। ये लगभग आपका 12:30 बजे का टाइम था जहाँ पे रिलायंस ने इंट्राडे में टॉप बनाया, ठीक है। यहाँ पे टॉप बनाया तो 2 चीज हम कर सकते हैं, आइदर अपने को पता है कि 1500 एक रेजिस्टेंस है, तो वी कैन लुक एट द 2 एग्जांपल्स। जैसे कि रिलायंस की 1500 की कॉल हम एट द मनी रही है, तो अपने को उसमें सबसे कंफर्ट जोन ज्यादा होगी कि जिसको सेल करनी हो उसके लिए 1500 की कॉल सबसे बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी थी। सेम टाइम 12:30 बजे
हमने रिलायंस की सॉल्ट यहाँ पे 9 रुपए 35 पैसे में करी थी। अब क्यों करी थी उसका एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल, हाँ, और एक चीज कि मेरे हिसाब से ऑप्शंस के इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के चार्ट नहीं देखते होंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक इनटू अ पर्टिकुलर ऑप्शन चार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस व्हेन यू वांट टू टेक एन ऑप्शन ट्रेड। जनरली पब्लिक क्या करती है, अंडरलाइन को देखकर इरेशनली कोई भी ऑप्शन जहां पे उसकी पॉकेट को प्रीमियम सूट होता है वो स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर लेती है। और अक्सर उसमें कैसा होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस अगर थोड़ी फार ऑफ की हो और वो पर्टिकुलर लेवल अगर पूरे महीने में या आपके जो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने डिसाइड किया अगर नहीं आता है तो यू टेंड टू लूज द प्रीमियम वेरी क्विकली एंड इजिली। तो अगेन वही का वही हो जाता है कि वो सिस्टम बेस्ड जब ट्रेडिंग नहीं होती है तो यू टेंड टू पे द प्रीमियम फुल इनटू द स्टॉप लॉस, मतलब जितना आपने प्रीमियम पे करा है वो आपका वैसे भी नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर दैट डजंट वर्क वेल। तो यहाँ पे अगर आप सिंस आई लुक रिलायंस वेरी क्लोजली ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं रिलायंस की हमेशा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एट द मनी की हमेशा मॉनिटर करते रहता हूँ। जैसे कि मैं 2 दिन से देख रहा था कि 1500 की कॉल में बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 1500 की कॉल की अगर एक्टिविटी हम कंटिन्यूसली चेक करते हो तो देखे कि कंटिन्यूसली प्राइस बिल्डअप होने के बावजूद भी प्रीमियम्स वेर डिस्काउंटिंग। तो ये चीज क्या अपने को कहलाती है, वी विल जस्ट टेक अ फ्लैशबैक ऑन टू द स्क्रीन कि यहाँ पे ऑप्शन बिल्डअप मतलब प्रीमियम्स वेर बेसिकली बिल्डअप हो रही थी, मीन्स आपका ओ आई वॉज अप और प्राइस डाउन हो रही थी, वहां पे पुट राइटिंग हो रही थी विच वॉज अ बुलिश सिग्नल, राइट बेसिकली। तो जब लास्ट 2 दिन से अगर आप रिलायंस की चार्ट देखोगे तो वो साइडवेज था, राइट। आज उसने पर्टिकुलरली ऑप्शन डेटा अगर कोई रीड करता हो खाली तो उसने 1500 की अगर कॉल को नोट किया हो कि वहां पे कंटिन्यूसली तुम्हारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था और प्राइस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ रही थी विच वी से एज अ पुट राइटिंग, ठीक है। और अगर कॉल राइटिंग हो तो प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रही थी और ये दिस इज अ पर्टिकुलर साइन ऑफ अ बेरिशनेस, मतलब कि रिलायंस ऊपर में रेजिस्टेंस कंपलसरी ये भाव पे लेना चाहिए, दैट इज व्हाट द डेटा इंडिकेट्स, ठीक है। तो जब ये ऊपर के लेवल पे आ जाया देयर वाज एन बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ट्रेड फॉर रिलायंस। और बीइंग एक्सपायरी अगर फटा रिलायंस अगर थोड़ा सा भी रिएक्ट करता है ऑन द डायरेक्शन वी आर टेकिंग अ कॉल, जैसे कि यहाँ पे हमने 1500 की कॉल ली है विच मीन्स हम उसके ऊपर पर्टिकुलरली नेगेटिव हो रहे हैं, तो अपने को चाहिए कि प्राइस ये लेवल से नीचे ही आए। सो लास्ट दिन ऑफ द एक्सपायरी है तो प्राइस टेंड्स टू बिहेव वेरी क्विकली इवन ऑन अ नॉमिनल चेंज ऑफ अ प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन प्राइस इजीली अपने को एक मौका दे रही थी यहाँ पे। और अगर आप मॉनिटर भी करो तो ऑप्शन प्राइस यहाँ 10:30 के लेवल पे लास्ट 3 दिन से उसने ट्रिपल ऑलमोस्ट डबल टॉप था और आज ट्रिपल टॉप 10:30 का जो एक जो लेवल था वो कंटिन्यूसली एक लेवल मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल ऑप्शन के चार्ट पे दिख रहा था, तो यहाँ उसने स्पाइक किया ऑलमोस्ट 10:30 के लेवल पे और नेक्स्ट कैंडल में अपने को इजीली एक मौका मिल रहा था उसको बेचने का। तो अगर आप यहाँ पे अगर बेचते हो यही कैंडल पे या ये कैंडल पे अगर 8 रुपए में बेचते हो तो 11 या 12 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड सिंस आई वाज अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट मैंने प्री ऑर्डर रखी थी, ये कैंडल की मूव देखकर मैंने एक 10 रुपए के आजू बाजू एक प्री ऑर्डर रखा था जो मेरा वो बेसिकली 10:30 पे हिट नहीं हुआ, तो हमने रीसेल मतलब रीमॉडिफाई करके इसको 9:35 में सेल करी थी। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटी थी विच वॉज 2 रुपीज, राइट। तो 2 रुपया मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी बिकॉज रिलायंस अगर आप पर्टिकुलरली उसकी मूव ऑब्जर्व करोगे 15 मिनट पे तो इट वॉज इजीली डाउन ऑलमोस्ट बाय 30 रुपीज। तो 30 रुपीज के सामने अगर उसका डेल्टा भी अगर हम एकदम लास्ट दिन पे भी कंपेयर करें तो वो 0.5 से कम होगा डेफिनेटली, तो वो सेम स्पीड से नहीं घटेगा बट देयर वाज एन इजी अपॉर्चुनिटी टू सेल एंड रिलीज ऑल द मनी इनटू द पॉकेट्स। ये बेसिकली जो सेलर्स होते हैं वो इजीली जान पाएंगे कि इसकी मूवमेंट क्या है, तो 2 रुपए में भी नहीं काटेंगे सिंस जब तक आपका अभी स्टॉप लॉस नहीं होता तो आप अपनी जो स्टॉप लॉस है ऊपर से नीचे नीचे कंटिन्यूस आप ट्रेल करते रहोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। पर ये हुई सेलर की बात, पर अगर जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेगा, तो उसको पर्टिकुलरली 1480 की जो स्ट्राइक प्राइस है जो अपनी एट द मनी थी उस टाइम पे
जहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, तो प्रोबेबली वो ये इनिशिएट कर सकता था। अगर ये ऑप्शन चार्ट पर्टिकुलरली देखे 1480 का, तो ये ऑप्शन चार्ट इंडिकेट एज पर अपना जो रूल है वो यहाँ पे उसने अराउंड सेम टाइम पे बाई कॉल जनरेट कर दिया था। दिस इज अ साइन ऑफ बेसिकली अ बाई। तो आपके आपका यहाँ पे जो जनरेट हुआ था वो करीब करीब 11-12 रुपए के आजू बाजू कॉल जनरेट हुआ था। सो द बेसिक रूल इज टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ द प्रीवियस कैंडल लो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से, विच वाज 50% ऑफ द प्राइस व्हाट वी हैव बॉट फॉर। 6 रुपए 12 रुपए में ली थी 6 रुपए की स्टॉप लॉस। सो अपने को कम से कम 12 रुपया तो चाहिए, बट सिंस इट इज एक्सपायरी डे तो पूरा 12 रुपए मिले कि नहीं मिले, तो एटलीस्ट 1:1 का रेशियो भी मिलता है 6 रुपया, तो अपने को एक अच्छा ट्रेड मिलता है। सिंस ये तो चलो ज्यादा मूवमेंट आई तो अपने को आराम से अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल हुआ, वरना एक पर्टिकुलर लेवल पे हम यहाँ पे भी उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज ये है कि सिंस RSI वाज बुलिश, इट हैज नेवर गिवन अ सेल सिग्नल, वी कैन डेफिनेटली कैरी अवर लॉन्ग ट्रेड। और अपना स्टॉप लॉस तो वैसे भी 6 रुपया था ही, तो अगर 6 रुपया स्टॉप लॉस था और हमने अगर यहाँ पे ट्रेल भी कर दिया होता, ये कैंडल के लो पे वो जो है 9 रुपया, जैसे जैसे प्राइस अगर तुम्हारा इंक्लाइंड आपके फेवर में होता है, यू शुड ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस टू द प्रीवियस कैंडल लो और ओपन, वॉट एवर द रिस्क रिवॉर्ड एपिटाइट यू वांट टू कीप इनटू योर माइंड, उसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस भी हमेशा ट्रेल करना चाहिए। बट स्टॉप लॉस तो हमेशा रखना है। अगर स्टॉप लॉस छोटे प्रॉफिट में भी हिट होता है या छोटे नुकसान पे भी हिट होता है, डेफिनेटली वो स्टॉप लॉस को हिट करना है। We don't have to take our own decision, the system अपने को जो बता रही है वही डिसीजन अपने को लेना है। अभी अगर हम ये बात करें तो अनदर एक कॉल है जो टाटा मोटर्स की हमने देखी थी 75 की कॉल ऑप्शन। टाटा मोटर्स की 75 की कॉल ऑप्शन यस्टरडे उसने शाम को एक बाय कॉल जनरेट करा था अराउंड 3 रुपीज, एंड दिस इज पर्टिकुलर सेटअप देखोगे तो इट वाज क्लियरली विजिबल कि व्हाट इज द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग ऑन द टाटा मोटर्स। ठीक है, और एक अपने सॉफ्टवेयर में अगर देखें तो अपने यहाँ पे एक समरी रिपोर्ट भी आती है जिसके अंदर सॉरी एक पे ऑफ कैलकुलेटर भी आता है। अगर पर्टिकुलर आपको प्राइस मूवमेंट अगर जाननी हो कि क्या एक्सपायरी के दिन पर्टिकुलर प्राइस ये हो सकती है, तो अपने पास एक वंडरफुल सॉफ्टवेयर है ऑल्ट ओ करके, दैट इज एन ऑप्शन कैलकुलेटर। अगर ऑप्शन कैलकुलेटर में हम डेटा अगर फिल कर देते हैं, ये डेटा रेडिली अवेलेबल होता है लाइव मार्केट पे। व्हाट इज ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अब जब मार्केट खत्म होगा इट इज शोइंग 999, बाकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अपने आप कैच करता है। एंड जो वो वॉलेटिलिटी होती है वो यहाँ पे अगर आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये जो बॉक्स है उसके अंदर फिल कर दो, सिंस इट वाज द डे ऑफ एक्सपायरी टुडे, तो ये अपने आप टुडे एंड एक्सपायरी डेट आती है। बट अगर जैसे कि हम अगर मिड ऑफ द सीरीज में अगर 16 तारीख से 17 तारीख को हम अगर पर्टिकुलर ऑप्शन चार्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 75 रुपीज का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, 75 रुपीज का कॉल ऑप्शन का अगर 16 तारीख को देखते हैं, एक्सपायरी 30 तारीख को है, सो इट विल डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज अपना वो कैलकुलेट कर लेगा। उसका बेसिक इनपुट डाल दो कि स्टॉक प्राइस बेसिकली उसी दिन जो दिन पे हम देखते हैं उसी दिन का स्टॉक प्राइस क्या था। एग्जाम्पल 80 रुपीज था एग्जाम्पल, और हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं या कॉल या पुट की, तो अगर हम 80 पे थे और 85 की कॉल स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, तो ये कैलकुलेट करेगा तो अपने आप वो बता देगा कि भाई एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस उसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से क्या कॉल की या क्या पुट की भाव हो सकती है। दिस द लेवल्स आर, ये जो प्राइस आती है ये अप्रोक्सीमेशन लेवल्स आती है। ठीक है, जब आप कंटिन्यूस मेजर करोगे तो हर डिफरेंट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि पर्टिकुलर अगर मैं ऑप्शन प्राइस अगर 18 रुपए में मैं ले रहा हूँ सपोज, तो उसकी एक्सपायरेशन प्राइस क्या होगी। ये तो आज की प्राइस है जो बता रही है। अगर आप देखोगे 26 तारीख को अगर सपोज इसकी प्राइस हम अगर 5 रुपया लेते हैं और फिर अगर कैलकुलेट करते हैं, तो भी वो अपने को बताएगी कि नेट ऑफ अगर 85 की स्ट्राइक प्राइस है और वो क्लोजिंग
तुम्हारा अगर टाटा मोटर्स यही लेवल पे होता है 85 पे, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होती है। अगर आपको नॉर्मली मैन्युअली अगर कैलकुलेट करना नहीं आता हो, तो ये आपको अप्रोक्सीमेशन आपको बता देता है कि कॉल और पुट में की प्राइस क्या हो सकती है। लेट्स मूव इनटू दी अनदर एग्जांपल। एक क्लासिक एग्जांपल है, अगर LIC का आपने अगर चार्ट देखा हो आवरली टाइम फ्रेम पे परसों, तो वो उसने एक क्लासिक ब्रेकआउट दिया था आवरली पे यहाँ पे, राइट। ये आवरली चार्ट है, और ये आवरली चार्ट का ब्रेकआउट अगर आप देखोगे कितने दिनों से ये स्टॉक इसी रेंज में नीचे के साइड पे घूम रहा है, ठीक है। अगर आप उसका अप्रोक्सीमेशन करोगे थोड़ा, तो मेरा जो पैरामीटर्स है उसके अंदर सुपर ट्रेंड जो अपना है, उसने आवरली चार्ट पे 28 तारीख को करीब करीब 265 के भाव पे अपने को ब्रेकआउट बताया था। उसी टाइम पे अपना सेटअप पे पैराबोलिक सर एक जो सपोर्टिव एग्जांपल, ये सपोर्टिव टूल है, वो भी पॉजिटिव हो गया था। थर्डली अपना जो RSI है, उसने भी यहाँ पे एक कट दी है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि भाई एक पुल बैक या पर्टिकुलर एक पॉजिटिव मूव या अपवर्ड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं वो आ सकती है। तो अगर आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपने काफी सारी देखी है कि LIC में वॉलेटाइल अगर होती है तो कैसे होती है। तो अगर आप फ्यूचर में लो तो आपको रिस्क है कि 1300 इंटू वॉलेटाइल, जितना बार आप स्टॉप लॉस रखो उतना ही रिस्क रिवॉर्ड। सो अगर फ्यूचर में अगर आप करते हो तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हाई रहेगा, एंड कंपेरेटिवली ऑप्शन में आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा लो रहेगा कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। बट ऑप्शंस अगर आप होल्ड करते हो, जैसे आप पोजिशनल ट्रेडर्स हो और आपको अगर एक रैली मिल जाती है, तो ऑप्शंस आल्सो कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इनटू योर पॉकेट्स। जैसे अभी ये लेवल पे थी, तो हमने एक आइडेंटिफाई किया था कि एट द मनी 265 270 का जो एक लेवल है वहां पे ब्रेकआउट आया। अगर LIC में अगर कॉल ऑप्शन देखें तो 10-10 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस पे है, तो डेफिनेटली 270 का कॉल हम डेफिनेटली बाई करते, या उसकी स्ट्राइक प्राइस को देखना है। तो इंडिविजुअली अब जब हम LIC के कॉल के चार्ट पे आते हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली 2 दिन से नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, इवन RSI भी कंटिन्यूसली नेगेटिव है। यहाँ पे एक दिन उसने पर्टिकुलर 27 तारीख को ट्राई किया कि भाई मैं थोड़ा बहुत मैं प्राइस कॉल की ऊपर लाने की ट्राई करूँ, बट सिंस अवर इंडिकेटर RSI जो इसके ऊपर मैं मेन फोकस करता हूँ वो हमेशा नेगेटिव था, इट वाज मेंटेनिंग बिलो 40 ऑड लेवल्स। यहाँ पे ब्रेकआउट भी कोई दिख नहीं रहा था, तो ये ट्रेड डेफिनेटली उचित नहीं था, लेने लायक नहीं था। जब अपने को इंट्राडे चार्ट पे भी जब 28 तारीख को ये अपने को पॉजिटिव साइन मिली, उसी दिन अगर देखते हैं चार्ट, तो यहाँ पे RSI वाज particularly much more in a better position than the current than the past position। यहाँ पे वो क्लियरली अच्छे पोजीशन पे है, और वो संकेत कर रहा है दैट इज शोइंग अ बाई साइन ओवर हियर। सेकेंडली अगर ऑप्शन चार्ट देखे तो हियर आल्सो देयर इज एन इंडिकेशन कि भाई अपना जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है वो बाई अपने को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो एक बाई साइन जनरेट हो चुकी है, राइट। तो ये दिन पे उसका जो था वो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली हाई है 3.80 एंड लो है 2.40, तो अप्रोक्सीमेटली आपको उसी बीच में कहीं पे भी बाई करने का मौका पूरे टाइम पे मिल जाता। सिंस इट इज एन आवरली चार्ट, तो आपको ये प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा दिख रही है, उसको हम 15 मिनट पे सिंक कर देते तो आपको थोड़ी देखने में आसानी होगी। ये देखिए, ये 15 मिनट का CM चार्ट है जो यहाँ पे अपने को संकेत कर रहा है, वो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन बता रहा है कि इट इज अ बाय ओवर हियर, एंड दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। सो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो समझो 3 रुपए में या 3 रुपए 25 पैसे में भी, तो आपकी स्टॉप लॉस है कि आप लोएस्ट जो ये बार है जहाँ पे जो बाय आपकी जनरेट हुई है वो है 2 रुपया। रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी मिनिमल। 1300 की लॉट साइज है, 1 रुपए का रिस्क है। तो बेसिकली दिस इज अ ट्रेड वी हैव एक्चुअली डन इनटू द सिस्टम। अगर 3 रुपए पे लेते हैं, 2 रुपए की स्टॉप लॉस है, और आप ये स्टॉप लॉस को कंटिन्यूसली ट्रेल करते जाओ, क्लियर कट है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से खुद मैनेज कर लो। एक भी जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक भी प्रीवियस कैंडल के लो को उसने अभी तक ब्रिज नहीं किया है, सो यू कीप ऑन ट्रेलिंग अ स्टॉप लॉस। और जहां पे वो एक कैंडल ब्रीच करता है, एग्जांपल ये 7 रुपए का हाई बना था, अपने को पता नहीं ये हाई बन गया है कि नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल जब ये अपना ये कैंडल का लो ब्रेक करता है जो कि है 6 रुपया,
बराबर है, तो अगर आपको 6 रुपए पे एग्जिट नहीं मिलता तो समझो कि 5-5.5 रुपए में भी एग्जिट मिलता है, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली मेंटेन है। बट जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए अभी भी ये सेल नहीं है, क्योंकि हम जो एवरेज यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली वो एवरेज को पकड़ के चल रहा है। सेकेंडली ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, तो उसका भी सपोर्ट उसने अभी ब्रेक नहीं किया है, प्लस आरएसआई ने भी कोई नेगेटिव सिग्नल दिया नहीं है, राइट। तो दिस इज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी वेयर पोजिशनल ट्रेडर्स, जो सेमी पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बाई कर सकते हैं देयर सेकंड लॉट इफ दे आर विलिंग टू, और इफ दे आर नॉट विलिंग टू दे कैन स्टिल होल्ड देयर ओन पोजीशन। और अगर वो देखोगे तो वो जहाँ पे ट्रेल, जैसे जैसे वो ट्रेल करते जा रहा है, यहाँ पे आरएसआई तुम्हारी पिक हो रही है, आरएसआई जहाँ पे पिक हो रही है वहां पे आप एग्जिट कर दो। और आरएसआई पे अगर एग्जिट नहीं करना हो तो जब वो अपना सेल कॉल जनरेट करता हो, जैसे कि उसने 12 रुपए पे सेल कॉल जनरेट करी है, राइट, तो जो टॉप है वो 14 रुपीज है, टॉप पे अगर एग्जिट नहीं करना हो क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है, एंड nobody in this trading system gets the high and the low price every time. If you are lucky enough to get it, consider yourself and take those movement into your pockets. तो अगर यहाँ पे भी एग्जिट करते हो तो आपने जो 3 रुपए में ली थी वो इजीली जस्ट एक ही दिन में, ये एक ही दिन, ये दिस 15 मिनट्स कंसिस्ट ऑफ वन डे, दूसरे दिन मॉर्निंग में ही आपको उसने अच्छा प्रॉफिट दिया है। अगर किसी को ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो अपने आप पे वो यहाँ पे पर्टिकुलर दिन पे भी एग्जिट कर सकता है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आई कैन शो यू कि ये अगर ट्रेडिंग सेटअप पे बाई आता है और आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बाई करते होल्ड करते हो, definitely things works very well on it. आज का एक एग्जांपल है जहाँ पे बैंक निफ्टी, अगर देखे बैंक निफ्टी का पहले फ्यूचर देखे हम, बैंक निफ्टी का फ्यूचर कंटिन्यूसली जैसे पता है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, और अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो वो कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है। तो जो टेक्निकल वाला है वो डेफिनेटली, अगर कोई पैटर्न यूज करते हो तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ट्रेंड लाइन को पकड़ के कंटिन्यूसली वो चल रहा है, और ऊपर के साइड में वो नया हाई नहीं बना रहा है, वो अटक रहा है, बट नीचे के साइड पे पॉजिटिव है, तो देर इज सम इंडिकेशन दैट बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग, एंड द मेजर ट्रेंड इज डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। तो अगर डेली ट्रेंड पॉजिटिव है और इंट्राडे में भी अगर आपको देखा तो कंटिन्यूसली वो प्लेसमेंट उनका एवरी टाइम हायर साइड पे है। तो आज जब उसने मॉर्निंग में ये लेवल पे जब 12:30 बजे जब मार्केट पूरा थक गया एंड वी गॉट वन अपॉर्चुनिटी कि भाई आफ्टर 2 दिन की रैली के बाद बैंक निफ्टी भी थोड़ी अटक रही है। जैसे अगर आप ऑप्शन चेन डेफिनेटली डेली यूज सब लोग करते ही होंगे, बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर, अगर नहीं करते तो please make an habit to watch option chain every 60 minutes. The reason behind saying is why every 60 minutes, the data जब change होता है तो अपने आप को वो एक हैबिट के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको कब कैसे बाई करनी है और कब कहाँ पे सेल करनी है। तो दोज हु आर सेलर्स डेफिनेटली इट इज वेरी इजी फॉर देम टू आइडेंटिफाई, बट जो बाई करके चलते हैं उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और उसको हमेशा ज्यादा एक्यूरेटली मॉनिटर करनी पड़ती है वो स्ट्राइक प्राइस चूज करने में कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करे। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो अपने, अच्छा और एक चीज, अपने सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छी फीचर्स है, सबने अगर एक्टिव नहीं करा हो तो डेफिनेटली आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे 2 मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड 2 मोस्ट एक्टिव पुट्स आपको हमेशा दिखते हैं फ्यूचर के चार्ट्स पे। अगर नहीं करा हो तो आप डेफिनेटली सेटिंग्स में जाके, चार्ट सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है शो 2 मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड पुट डिटेल्स, उसके ऊपर आप टिक मार्क कर दो, आपको ये दिखना चालू हो जाएगा। एक चीज है कि ये लाइव मार्केट में ही आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगी, पोस्ट लाइव मार्केट ये नहीं दिखती, बट जैसे वी आर डेफिनेटली एन इंट्राडे ट्रेडर, तो हम लाइव मार्केट में अगर ये चीज भी इतनी मिल जाती है तो बहुत ईजी है। और पोस्ट लाइव मार्केट कोई भी चीज एनालिसिस करना हो तो अपने पास डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट तो है ही कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अगर आज की बात करें तो अगर आप देखो कि कॉल्स में 22,000 के कॉल में 21,700, 22,500, ये सब कॉल्स में काफी बिल्टअप डेटा हो रहा था। और लास्ट, सिंस इट इज अ डे ऑफ एक्सपायरी टुडे, मेनी ऑप्शन प्राइसेस मस्ट हैव सेटल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओपन इंटरेस्ट। तो अगर आप सुबह से अगर मॉनिटर करते तो 22,000 यहाँ पे मोस्ट एक्टिव है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। और आपकी जो निफ्टी है
बैंक निफ्टी है बेसिकली वो काफी रन अप हो चुकी थी और ये एक लेवल पे एग्जैक्टली उसने रेजिस्टेंस लिया था जहाँ पे अपनी सिस्टम ने सेल कॉल जनरेट करा था। 22,000 का जो एक स्ट्राइक प्राइस था वो डेफिनेटली नियरेस्ट टू दी प्राइस था। तो अगर हम देखें कि 22,000 की जो प्रीमियम थी दैट वाज वेरी हाई ड्यूरिंग दोस टाइम। अगर किसी को यहाँ पे मौका मिलता, जैसे ऑन आवर बेसिक सिस्टम व्हाट माय पैरामीटर्स आई यूज, मेरे पैरामीटर्स में ये सेल कॉल लगभग हमारा 110 120 रुपए के आजू बाजू आया था। और जैसे कि हम वी ऑलवेज नो कि प्रीवियस कैंडल का हाई या उसके प्रीवियस कैंडल का हाई, क्योंकि सिंस बैंक निफ्टी है तो वी हैव टू मैनेज अवर स्टॉप लॉस वेरी क्लीनली। और 10-20 रुपया 30 रुपया तो प्रीमियम एट द मनी के आजू बाजू की स्ट्राइक प्राइस में तो ऐसे ही गुम जाता है। बैंक निफ्टी की 50-100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी में इट टेंड्स टू गिव यू दोज वॉलेटाइल मूव। तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो 40-50 रुपीज का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हो ऑन अ पर्टिकुलर बाई या सेल जो भी आप करते हो, 50 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इजी हो जाता है आपको मैनेज करने में। अगर यहाँ पे मैं सेल कॉल अगर मैंने मतलब ये बैंक निफ्टी जब मुझे 22,000 की कॉल सेल जनरेट कर रही है और मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 110 के रुपए में, तो एटलीस्ट मैं 140-20-25 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ। तो नेक्स्ट दो कैंडल के बाद एक सीधा फॉल आता है एंड हियर आवर सिस्टम सेज कि भाई आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है प्रॉफिट मिल रहा है आप बुक कर लो। सेकेंडली अगर आप पर्टिकुलरली इंट्राडे के ऑप्शन चार्ज ऑब्जर्व कर रहे हो तो बैंक निफ्टी ने यस्टरडे 22,000 की ये तो कल आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा डेफिनेटली, जब 22,000 के पास बैंक निफ्टी आया तभी आप 22,000 की कॉल ऑब्जर्व कर रहे हो। तो 22,000 की कॉल की कल की आरएसआई देखो, आज की आरएसआई का जो प्राइस न्यू हाई मार रहा है, आरएसआई डेफिनेटली नई हाई नहीं मार रहा है, विच इज कॉल एज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। द बेस्ट टूल टू टेक अ ट्रेड ऑन दी आरएसआई। आरएसआई मेरी फेवरेट क्यों है, क्योंकि इट इज ऑलवेज गुड फॉर मी टू टेक एन कॉन्ट्रा ट्रेड। और जब ऐसे नेगेटिव डाइवर्जेंस वाले ट्रेड मिलते हैं, I seriously tell you those trades works very fantastically. You can do your own back testing also कि कैसे क्या होती है। अब एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं कि बजाज फाइनेंस ने क्या किया था। सिंस बजाज फाइनेंस इज अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, एवरीबॉडी नोज इट, राइट। बजाज फाइनेंस ने अगर आपको पता हो तो कंटिन्यूसली एक फॉल जब उसने चालू किया था सिस्टम ने तो बहुत ही जल्दी इंडिकेट कर दिया था, बट सिंस वी कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग, हमने काफी जैसे जैसे अगर इंट्राडे पैरामीटर्स जो जो यूज करते हैं, जितने भी बार भी सेल जनरेट होता है हम उसकी पुट ले सकते हैं। एग्जांपल 21 तारीख को अगर तुम्हारा यहाँ पे एक सेल कॉल जनरेट हुआ था विच वाज एन ऑनगोइंग सेल कॉल फ्रॉम दी हायर साइड, अगर यहाँ पे तुमने सेल कॉल पे एक्ट किया हो विच वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2100, तो अगर 2100 की अगर आप पुट स्ट्राइक ट्रेड भी करते हो दैट कुड हैव गिवन यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और जब वो उसकी एग्जिट कॉल आई थी इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू सी। आई विल जस्ट हेल्प यू विद द 2100 पुट ऑप्शन कि उसने कैसा रिएक्ट किया था। ये 2100 की पुट ऑप्शन है, सेम डे की 23 तारीख की उसने एंड ऑफ द सेशन पे बाई कॉल जनरेट करा था। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो देखो कि उसने कंटिन्यूस फॉल होने के बाद 1, 2 और 3 ऑलमोस्ट 60 रुपए के आजू बाजू वो नीचे हमें सपोर्ट ले रहा था। आपकी आरएसआई ने नीचे से वो जब कंटिन्यूस फॉल हो रही थी, आपने अगर प्राइस के साथ पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस वॉच कर रहे हो तो कंटिन्यूसली दिख रहा था कि आरएसआई इज फॉलिंग। यहाँ पे एक जो लेवल है जहाँ पे फर्स्ट टाइम आरएसआई ने इंडिकेट किया आई मे स्टॉप फॉलिंग ऑफ अ प्राइस इन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। सेकेंड टाइम जब वो ऊपर आया, ये यहाँ पे अपनी बाय कॉल जनरेट हुई थी, तब अपने पास ऑलरेडी कंफर्मेशन था कि भाई प्राइस के साथ साथ आरएसआई इन टेंडम है और वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आप इसको बीटीएसटी के तौर पे लेके गए होते हैं इट वुड हैव बीन अ वेरी फैंटास्टिक ट्रेड। वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड हार्डली कुछ एनीथिंग है। बस एक ही चीज है कि जनरली व्हाई आई डोंट इंसिस्ट ऑफ कैरिंग अ ट्रेड ओवरनाइट इज ये सब स्टॉक्स बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और हल्का सा न्यूज भी इसको 5% गैप अप या गैप डाउन कर देता है। और 5% गैप अप गैप डाउन में ऑप्शन प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर जाती है, क्योंकि उसके डेल्टा है थीटा है वो सब काम करने अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उससे एबनॉर्मली एक्टिव हो जाते हैं।
और वो कैसा है कि वो पर्टिकुलर गैप डाउन प्राइस रिलेटिव थियरी है कि वो गैप अप गैप डाउन में ऑप्शन हमेशा एक बार ओवर रिएक्ट ही करता है जिस नॉर्मल रिएक्शन से। अगर उसको 5 रुपया गिरना होता है तो हमेशा एक बार 10 रुपया गिरेगा और फिर पूरे दिन दरमियान वो अपने आप के प्राइस सेटल कर लेता है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस इट इज एन hedge पोजीशन, it is not advisable to carry a larger trade or the most volatile stock option to carry forward during the course of the day as a BTST। जब तक इंट्राडे में अच्छा मिलता हो डेफिनेटली उसको अपने को एनकैश कर लेना चाहिए वो मूवमेंट को, राइट। सो अगर अगर आप देखो अच्छा, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द बजाज फाइनेंस। उसने वो आफ्टर द कंटिन्यूअस फॉल उसने एक फ्यूचर में बहुत ही अच्छा 1900 के लेवल पे एक बॉटम बना रहा था। ये बॉटम कहाँ से आपको तय हो रहा था? फर्स्ट तो अगर आप वीकली चार्ट देखते हो, एनालिसिस करते हो, तो 1900 पे प्रीवियस बॉटम था जहां से उसने ऑलमोस्ट मतलब डबल प्लस का रैली किया था, राइट। तो उसने सेम लेवल पे ये टाइम भी बॉटम बनाया 1915 के सामने 1919, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ये डबल बॉटम वीकली चार्ट पे हो रहा था। तो ये अपने को डेली वीकली चार्ट तभी तो फॉर्म नहीं होता, बट डेली चार्ट से अपने को कंफर्म हो रहा था। सेकेंडली ये जो है आपका RSI, ये जब बॉटम हुई थी RSI ये प्राइस पे, तभी आपका प्राइस कुछ 2500 पे था। सेकेंड RSI ने जब बॉटम बनाई तभी प्राइस नया लो था, बट RSI ने नया लो नहीं मारा था। थर्ड जब वो साइजेबली नीचे आया और RSI देखो, RSI का मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे अपमूव चालू हो गया था, बट हम खाली RSI को देख के तो ट्रेड नहीं कर सकते विदाउट एनी कंफर्मेशन। एटलीस्ट फॉर एनी ट्रेड वी नीड 2 कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे RSI ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे दिया था, बट ये दिन पे डेफिनेटली ट्रेड तो जनरेट हुआ ही था। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे डेली में भी आपका ट्रेड जनरेट हो गया। ये तारीख की 27 तारीख, अगर 27 तारीख का हम इंट्राडे अगर वॉच करते हैं, राइट, दिस इज दी इंट्राडे पैटर्न ऑफ 27 फॉर बजाज फाइनेंस। देखो बजाज फाइनेंस ने अगर इंट्राडे में है तो ये 1900 का जब लो मारा था उसके बाद ये कंटिन्यूस एक बुलिश कैंडल बना के वो साइडवेज ट्रेड कर रहा था। ये 28 तारीख को जब उसने अपने को कंफर्मेशन आया, तब ये दिन पे 28 तारीख को मॉर्निंग में अराउंड 10:30 बजे एक बार कंफर्मेशन आया कि हाँ भाई स्टॉक ने नीचे का थोड़ा बहुत बटन बना दिया है और एक प्राइस मोमेंटम ऊपर के साइड पे ले सकते हैं। सिंस द मूविंग एवरेज आल्सो कंफर्म्स दैट प्राइस हैज बीन होल्डिंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 आवर ऑन अ पर्टिकुलर एवरेज। यहाँ पे अपनी सुपर ट्रेंड भले एडवांस में बाई दे चुकी थी RSI के तौर पे, बट अपनी पर्टिकुलर फ्यूचर में बाई कॉल जनरेट हो गया था, ऑप्शन में नहीं हुआ था। क्योंकि ये सेम चीज मैं आपको अभी ऑप्शन में वेरीफाई करवा दूं कि ऑप्शन में बाई कब हुआ था, ठीक है। ये जब ये प्राइस थी तो इट वाज अराउंड 2050 और लेवल्स। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपकी है बजाज फाइनेंस की 2100 की। तो वी विल वॉच 2100 स्ट्राइक प्राइस ऑन 27th एंड 28th, राइट। ये आपकी 27th की ये आपका 27th का है जब आपको मिड ऑफ द सेशन में बाई कॉल जनरेट हुआ था। डेफिनेटली आपकी जो प्राइस थी ऑलरेडी कुछ रिएक्ट कर चुकी थी एंड इट वाज प्योरली ऑन अ साइडवे बेसिस। एंड 28 को जब हमने 10:30 बजे देखा, 10:30 11 बजे, जहाँ पे अपने को सेकंड कंफर्मेशन मिला, सेम टाइम पे ऑप्शन चार्ट अगर देखें तो अपने को 11:15 बजे यहाँ पे ऑप्शन चार्ट बता रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि मेरा नीचे जाना बंद हो रहा है और मैं एक ऊपर के साइड में ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द टाइम अराउंड वी कुड हैव इनिशिएटेड आवर लॉन्ग्स। अगर यहाँ पे अगर देखें तो 80-85 रुपीज में लॉन्ग अगर इनिशिएट हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस है प्रीवियस लो का विच इज 65 रुपीज। अगर यहाँ पे एक बार ट्रेड जनरेट हुआ 1:1 विच इज 15-16 रुपए आपका जो स्टॉप लॉस है, आप उसी दिन में इंट्राडे में अगर देखोगे तो इट इज ऑलरेडी गिवन यू 2x रिटर्न। सो नो नीड टू कैरी अ ट्रेड फर्दर। अगर ट्रेड ही करते तो आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड यू कुड हैव गिवन इट कुड बी अ मल्टी बिगल ट्रेड। बट सिंस आवर concept is of an intraday, अगर आप इंट्राडे की स्ट्राइक प्राइस और why am I taking directly the strike price, because I have already studied विद एन एक्सपीरियंस की ये स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा न्यूट्रली एट द मनी की 0.5 होती है और जनरली उसका मूवमेंट वैसे ही आता है। जब वो इन द मनी हो जाती है वो 0.5 से उसकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। एंड सिंस डे टू एक्सपायरेशन इज वेरी नियर, 3 दिन बाकी है एक्सपायरी के, तो हम ज्यादा लंबी स्ट्राइक प्राइस नहीं लेंगे। क्योंकि अगर ये स्टॉक अगर मूव नहीं करता
तो ये प्राइस जो गिरता नॉर्मल सिनेरियो से बहुत ज्यादा जल्दी गिरता, क्योंकि थीटा वुड कम इनटू द प्ले एंड थीटा इज अ टाइम डीके। अगर एक पर्टिकुलर समझो कि 2100 के ऊपर अगर ट्रेड नहीं करता 2 दिन में, तो ये मेरा 60 रुपया तो ऐसे ही गल जाता। सो अपना स्टॉप लॉस तो है बेसिकली, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एंड थीटा, कि थीटा कहाँ पे प्ले आता है। अगर आप आज देखोगे तो थीटा ने बहुत ही अच्छा प्ले किया है तुम्हारे 9900 के कॉल में और 9850 के कॉल में। मार्केट ने 98 के ऊपर 9850 के आजू बाजू भी बंद दिया, बट यहाँ पे जो उसका डेल्टा था वो 0.5 था तभी भी, तो वो मार्केट के इन टेंडम में घूम रहा था। बट सिंस दी डे टू एक्सपायरी कुछ ही घंटे बाकी थे, तो थीटा ने अपना काम शुरू कर दिया। मार्केट लगातार अगर आप देखोगे तो 9830 9840 के लेवल पे लगभग पौना घंटा था। पौना घंटा वही प्राइस, वही स्ट्राइक प्राइस पे रहने के बावजूद भी प्राइस हैव स्टार्टेड फॉलिंग। वी कैन टेक दिस थिंग साइमल्टेनियसली। 9850 का ये चार्ट पे कॉल है, और हम इसे थोड़ा एनलार्ज करके सामने निफ्टी रख देते हैं टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। ठीक है, ये है कितने बजे, 12:30 बजे। ये भी है निफ्टी 12:30 बजे। यहाँ पे अगर एक फॉल होने के बाद, यहाँ पे एक फॉल होने के बाद सेम रेप्लिका है चार्ट का। ये यहाँ पे निफ्टी आपकी 9810 9820 9830 के लेवल पे घूम रही है। ठीक है, द price of the nifty is very constant, but price of an option chart have started decaying. Here the theta comes into the play. अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ये 98 के पुट पे, अगर 98 के कॉल पे क्या थी, तो सेम वे हम उसको क्रॉस वेरीफाई 98 एट द मनी के कॉल पे भी कर सकते हैं कि उसने वो टाइम पे कैसे टाइम डीके चालू कर दिया था। ये सेम प्राइस है आपका 12:30 बजे का, ये देख लीजिए। आफ्टर द फॉल इट इज समवेयर अराउंड एट 115। ये भी आपका जो टाइम है वो 115 है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसने अपना काम चालू कर दिया। अब ये स्पाइक क्यों आया, वो जस्ट इट वाज बिकॉज ऑफ दिस स्पाइक। 1 मिनट के लिए उसने स्पाइक दिया, निफ्टी वहीं की वहीं है फॉर ऑलमोस्ट 15 30 45 मिनट्स। 15 30 45 मिनट्स प्राइस हैव स्टार्टेड फॉलिंग। ये तो बाद में आया, क्योंकि लास्ट में उसने निफ्टी ने ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मूव कर दिया, और ये 9800 का कॉल इन द मनी आया, तो इट हैज मैच्ड विद दी प्राइस ऑफ ए निफ्टी। 9860 पे बंद हुआ, तो 98 का कॉल डेफिनेटली 60 रुपीज पे बंद तो होना ही चाहिए। दिस इज दी नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन विच वी ऑल नो। तो ये है, दिस इज दी थिंग हाउ आई लुक एंड बिल्ड अप अ ट्रेड। और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे, इट इज डेफिनेटली मोर यूजफुल। की पॉइंट्स अगर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस के लिए, तो फॉर एनी ट्रेडिंग ऑप्शंस वी नीड टू प्ले द नियरेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस टू गेट द फास्टर इन एंड आउट। अगर नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे हम प्ले करेंगे तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस आल्सो गेटिंग hit will be very high. Same way chances of target hitting also will be very high. और जो वॉलेटाइल ट्रेडर नहीं है, जिसको वॉलेटिलिटी ज्यादा सूट नहीं करती है, तो एट द मनी +-2 के स्ट्राइक प्राइस पे डेफिनेटली खेल सकता है ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीक। अगर लास्ट वीक है तो डेफिनेटली एट द मनी +-1 पे ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि जैसे आप एट द मनी 2 पे चले जाते हो, तो लास्ट मंथ में अगर देखोगे तो मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, और बाय मिस्टेक किसी ने कॉल ले लिया हो तो कॉल की जो स्पीड थी घटने की वाज ट्वाइस द पुट बढ़ने की क्षमता। अगर 0.5 डेल्टा पे 5 रुपए पे समझो कि उसको 2.5 रुपया चलना चाहिए, तो पुट मुश्किल से 1.5 से 2 रुपया बढ़ रही थी, बट कॉल को घटना चाहिए 0.5 डेल्टा वाली को 2.5 रुपया, वो घट रही थी 3 साढ़े 3 रुपया। दिस इज एन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एंड अगर आप खुद माइन्यूटली ये सब चीजें ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। एंड वी हैव गॉट द बेस्ट टाइम। ये लॉकडाउन में आपके जो अपने फीचर्स है स्पाइडर्स के, वो ट्राई टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी फीचर्स ऑन द डेरिवेटिव्स। इट हैज एन गुड इनसाइट अबाउट द थिंग्स, एंड द डेटाज आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस के बेनिफिट ये है कि इंट्राडे ट्रेडर को एंट्री एग्जिट फटाक से मिल जाएगी। सेम वे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज कीप एन हैंडी of your option chain analysis and keep checking options and activity at least
30 to 60 मिनट जो मैंने पहले बताई, क्यों कि इंट्राडे ट्रेडर है, कहीं पे ऑप्शन पर्टिकुलरली लेने के बाद भी अगर वो मूव नहीं करता, स्टॉक साइडवेज हो रहा है, या ऑप्शन अल्टीमेटली कैसा है कि इंट्राडे में स्टॉक्स आइदर इट विल मूव इंडिविजुअली या फिर ऑप्शन एक्टिविटी एट द मनी की सडनली चेंज हो गई तो ऑप्शन अंडरलाइंग एसेट है उसकी भी प्राइस में चेंज आएगा। एग्जांपल, अगर रिलायंस बढ़ते बढ़ते अचानक अटक गया तो ऑप्शन एक्टिविटी में कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक से एक्टिविटी 1500 के बदले 1480 में चालू हो गई, 1500 की अनवाइंडिंग होने लगी, 1480 में डेटा बिल्टअप होने लगा, तो वो अपने आप जो बढ़ती हुई प्राइस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन एक्टिविटी का जो चेक है वो अपने पास हैंडी ही होना चाहिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कमेंट कि आप अपना एक सेट ऑफ सिलेक्शन का स्टॉक्स बना लो, जैसे कि हम स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शंस आर ऑलवेज वर्सेटाइल इन नेचर, उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत इजीली मिल जाती है, एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज विद एनी पर्टिकुलर प्राइस आपको एंट्री एग्जिट मिल जाती है। बट जब स्टॉक ऑप्शन की बात आती है तो स्टॉक ऑप्शन में देयर आर 3 कैटेगरीज: मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक, नॉन वॉलेटाइल स्टॉक एंड सम स्टॉक्स आर ऑलवेज इनटू द साइडवेज कैटेगरी। ये जो साइडवेज कैटेगरी होती है ना, वो राइटर्स लोग के लिए बहुत अच्छी होती है। साइडवेज कैटेगरी, इफ वी से आईटीसी अगर देखे तो अचानक से कभी मूवमेंट देता है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन साइडवेज। अगर आप ये देखोगे, ये एक्टिविटी यहाँ पे सडनली कुछ न्यूज आई थी और बढ़ी थी, बट यहाँ पे देखते हो कि 200 ऑप्शंस में कंटिन्यूसली लगातार सिंस स्टार्ट ऑफ द मंथ एक्टिविटी है, और ये उसने 193 का हाई मारा, नेक्स्ट दिन उसने साइडवेज किया, थर्ड फोर्थ डे उसने कंफर्म कर दिया कि भाई मेरा ऊपर जाना अब रुक गया है। एंड ये ऊपर जाने के बाद आपको इजीली यहाँ पे एक डेटा इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे आप आराम से इसके कॉल ऑप्शंस राइट कर सकते हो। ये एक सिंस आई वुड सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, it is almost above an hour, I will definitely would like to bring to your notice one most important thing कि why I mean you have to be prominent to decide whether to buy or call or a sell or a call, या बाय और पुट, शेयर और पुट। ये जो साइडवेज स्टॉक्स होते हैं एग्जांपल, उसके अंदर हमेशा आपको सेल करके चलोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि ये आईटीसी था 200 की, अगर हम कॉल देखें पर्टिकुलर दिन पे विच इज 15th ऑफ अप्रैल, 200 की कॉल अगर हम मॉनिटर करते हैं 15th ऑफ अप्रैल की, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली थी। वीजा वीज देखिए, प्राइस आपकी ऑप्शन की हमेशा प्रीवियस डे पे अगर देखे तो इट इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। यहाँ पे एक आपको अपमूव मिला 200 की कॉल, यहाँ पे अगर 15 एंड 16 अप्रैल को उसने मूवमेंट यहाँ पे क्लियर कट बता दी। अपने को फ्यूचर स्टॉक्स में पता है कि 200 की स्ट्राइक प्राइस पे बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस है, फ्यूचर प्राइस भी 195 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आगे नहीं गया। सेकेंड डे पे जब कंफर्मेशन आ गई तो डेफिनेटली आप अगर 200 की कॉल ये लेवल पे इजीली बेच पाओगे, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब मुश्किल से 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। तो आपको 6 दिन 7 दिन के अंदर ऑलमोस्ट आपके पूरे जो सेलिंग प्राइस है, आपने अगर 4.5 रुपए में बेची है कोई पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन, ठीक है, वो पूरी घर में आएगी। 1 रुपए का एक आपका स्टॉप लॉस है जो हिट नहीं होता है, ये आप देख लीजिए इसकी हालत क्या है, राइट। और कॉल बेचने में इसमें फायदा है, उसके लिए मैं बताया। ये सेम चीज अगर आप देखते हैं कि मैंने 190 का पुट बाय किया होता, बराबर है, पहले तो उसमें एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, 190 का अगर पुट मैं बाय करता, ठीक है, तो सेम 17-18 तारीख को डेफिनेटली सॉरी 185 का कर दे, क्योंकि हम एट द मनी -1 या कर दे 185 पे अपने को कंफर्मेशन मिली थी। तो देख लीजिए अगर आप बाई करते 185 का पुट 8 रुपए में 9 रुपए में, जहां पे भी अपने को बाई कैंडल मिला, बट उसके बाद कभी वो ड्रास्टिकली स्टॉक गिरा ही नहीं, तो प्रीमियम मीटिंग चालू हो गई और स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ वहीं का वहीं बंद हुआ, तो पूरी प्रीमियम वो अपनी घर से लेके गया, अपने पास स्टॉप लॉस करने का भी उसने मौका दिया नहीं। इसी तौर पे अगर कॉल बेची होती तो अपने को ज्यादा टेंशन आती नहीं। सो वाई सेलिंग अ कॉल फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इज इम्पोर्टेंट, उसका ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड। इसकी इन डिटेल पर्टिकुलर कुछ जाननी हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर सेशन में आप क्वेरी रेज कर सकते हो। Most of the things I have covered, why and what are options needful, why one should
do the options. I will first take you to the category again. All of the things are covered here. Almost मैंने आपकी सब टॉपिक्स कवर कर दी है कि why to select an option और why what are the main reasons कि किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग जो नहीं करते हो उसको करनी चाहिए. रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही उंडा है इसके अंदर एंड यू गेट एन गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैपिटल आल्सो. एंड इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत इजी हो जाता है और खास करके जब वॉलेटाइल मूव होती है तो ऑप्शंस गिव यू गुड अमाउंट ऑफ capitalization in the course of a running trading session. I think most of the topics are covered and here I would like to end my topic. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली अपने स्पाइडर के कांटेक्ट जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो विच आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. और कुछ भी अगर डेटा या कुछ भी ये है तो आपको अगर मेल भी करना हो तो spider@softwareindia.com पे आप मेल कर सकते हो. Moderator, I would like to hand over to you. My session is almost done. Okay, sir. Thank you, sir, for your guidance. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Rahil sir. It was honor to listen to you. Thank you so much for giving us a valuation time. So, if anyone have any query, you can contact us on. I hope able to. Once again, I will repeat the contact number so you can contact on this 02242446400. You can also email us on support@spidersoftwareindia.com regarding any query from today's webinar or related to anything about this software. So you can write down to this email address. And today's webinar is end here. Thank you once again, Spider, for giving this opportunity to showcase my skills, and hope this skills helps other traders and investors into their daily routine activity. And if any query on the particular setup, they can definitely connect you for the same, and you can connect me. We can try to get back to you and solve their queries. Thank you. Welcome, sir.